बेंगलुरु के मशहूर शिफा अस्पताल में हर साल की तरह इस बार भी रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शिफा अस्पताल के चीफ फाइनेंस ऑफिसर सलीम बादशाह ने तिरंगा लहराया। डॉक्टर नबी मियां जमील अहमद, शिफा अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर मुश्ताक, डायरेक्टर डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर आईए खान, मोहम्मद सैफुल्लाह व दीगर इस जश्न में शामिल थे। शिफा अस्पताल की इंतजामिया के तहत चलाए जा रहे पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स के स्टूडेंट्स ने कन्नड़ा, उर्दू, अंग्रेजी जबानों में यौम जमहूरिया की अहमियत पर तकरीरें पेश की। इस खूबसूरत माहौल में यौम जमहूरिया साल 2025 की तकरीब मुनक़द हुई। शिफा अस्पताल का अमला, सिक्योरिटी स्टाफ व दीगर मौजूद रहे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವಾಗಿ ನೆನೆಯುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1960ರಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತತದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜನರನ್ನು ಸಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಒದಗಿಸಿದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ थैंक यू फरजाना। इसके बाद मैं उर्दू की तकरीर के लिए तैयार बारूना पीएम स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू कम एंड डिलीवर। असातिज़ा और मेरे साथियों, एक बहुत अच्छी सुबह और सबको यौम जमहूरिया मुबारक हो। मेरा नाम तैयबा नूरेन है और मैं सेकेंड ईयर पैरामेडिकल की तलबा हूँ। आज 26 जनवरी है और हमारा यौम जमहूरिया जिसे हम आज हिंदुस्तान के शहीद के तौर पर गुजार रहे हैं। इस दिन मैं इन तमाम अजीम आज़ादी पसंदों और सिपाहियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान। आज मुल्क भर में हमारी तकरीब to celebrate 76th Republic Day, a momentous occasion making the day our Constitution came into effect, transforming India into a sovereign democratic republic. On this day, let us remember the sacrifices of our freedom fighters and recommit ourselves to the values of justice, equality and liberty enriched in our nation's guiding principle. Republic Day marks the adoption of Indian Constitution. आज we are fifth economic power in the world. Silicon Valley हमारे पास है. When Barack Obama he became the president of US, in the first speech what he said, study like students of Bangalore. He was addressing this in first speech. So now every fifth doctor in US is an Indian, and nearly 25 mashallah CEOs of mashallah our country. Is a proud moment for us as CEOs. Further we'll march ahead. So as our Prime Minister and our government has envisaged that we must become the largest economy of the world. So we have on some definitely a plan. So to become third, second, because we don't jump, we have a definite plan, and definitely we are going to be a superpower provided. So only one request is we are good at working, putting in hard work and humility outside the country. The same thing can be put in the country, in our country, in our just organizations, in our families. I think we can do wonders. One of my friends is immunologist in States. He was my roommate. He said, you know why Indians are excelling and doing extremely well in US? He said because of two qualities. One is they are skilled, and along with skill they are very, very hardworking. Hardworking and skill is the first point. And second thing is they are humble to the core. Yeah, if you look at the other way around it is.
I don't know, something happens when we just step into our own organizations. So our skill definitely dies down because we become very complacent. We want to get into comfort zone. And second most importantly, what happens is, by something they get tons of egos when we come here. Very, very unfortunate. Maybe we think we andho mein kana raja. We see everyone big doctors, very highly qualified, they are humble. So we also become humble. Can कौन miss नहीं? मैं so जो है I think जो है अंधों में काना राजा type to just straighten my collar. अगर हम लोग आज भी जो है ये दो सिफात से जो है हमको दीन सिखाता, हर मजहब सिखाता कि भाई जो है no one wants us to be complacent, जीवन को पड़े रहना, उठने आधा घंटा, बैठने आधा घंटा. It's very, very irritating and disgusting if anyone sleeps after Fajr. तो कम से कम जो है देखो हमारा मुल्क अगर जो है माशाल्लाह आज ताकत है तो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज़ अबाइडिंग विद द लॉस. Similarly, if you want mashallah our families to be mashallah strong, abide by some rules and regulations. If you want yourself to be strong, हमारे वास्ते भी कानून रहना, कब मिले सब सोना, कब मिले तब आना, कब मिले तब जागना, कब मिले तब हॉस्पिटल को आना, कब मिले तब राउंड्स करना. दिस विल लीड टू डिजास्टर्स. आज अगर जो वाक़ईतन वी आर इंटरेस्टेड इन आवर सेल्फ एंड वी वांट टू बिकम एन एसेट टू आवर कंट्री, तो इस बात का जो है माशाल्लाह सबूत देंगे हम लोग कि हम क्या करेंगे इंशाल्लाह कि भाई जो है कम से कम भाई जो है आई विल बिकम एसेट. मैं एसेट बनना है तो कानून अपने से बना लियो. तुम ना कौन भी जो बोल रहे नहीं बाहर का कानून, तुम्हारा उससे कानून भाई सोने का तो कानून रहना, ये वक्त सो जाना, ये वक्त उठना, ये वक्त खाना, ये खाना, घर में ऐसा रहना, ये वक्त पहनना, ये वक्त काम. ये नहीं है कि जो है जैसा हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पढ़ने के वक्त खेलते हैं, खेलते वक्त पढ़ते हैं. हमारे जो है वही आदत जो है काम के वक्त जो है मजाक कर ले को, उन्हें से टूंग ले को, उन्हें इधर जा ले को, जस्ट वेलिंग योर टाइम नेचुरली विल गेट इनटू डिजास्टर्स. अगर आज भी अगर जो है जो सिफात हमारे जो है इंडियंस they have excelled there because skills with hard work and second thing humility. और जैसे जो है if you really do hard work humility आती है. अक्सर जो करती कौन जैसा देखें आप लोग, एक जो है फलदार दरख्त झुक जाता लेकिन जो है एक कांटेदार दरख्त सीधा खड़ा हो जाता. कांटेदार दरख्त जो है जलाने के काबिल का आदमी देख को जो है मुंडी झुका लेते हैं. कांटेदार दरख्त क्या अच्छा है देखो कहते निकल बोलते हैं. तो भाई जो है तो हम लोग कांटेदार दरख्त नहीं बनेंगे, हम फलदार बनेंगे इंशाल्लाह. We'll put in efforts and naturally it was not easy to steer India post independence. आपको मालूम है इंडिया was left with nothing in 1947. By everything was taken away by British. Plus जाते जाते जो है ब्रिटिशर्स क्या करे भाई जो है एक ऐसा मसला रखकर चले गए जो आज तक जो हम भुगत रहे हैं. पार्टीशन वॉज एनविशन बाई देम. तो भाई जो है उसके बाद जो हालात हैं बट स्टिल जो है इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस, so many cultures, alhamdulillah we stood tall because of some few people toiling behind the scenes, not because of people who are just स्टेज के आदमियों से कभी काम नहीं होता. उन लोगों से जो है बिहाइंड द सीन्स काम कर पाए हैं, मेहनत कर पाए हैं, दिन रात मेहनत कर पाए हैं. तो आज जो है अगर हम वही एग्जाम्पल को लेकर समझो कि जो है माशाल्लाह एक हमारे वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन होगा शिफा के वास्ते, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके हम अवॉइड करेंगे पूरे मिलकर. तो कल जो है हमारा जैसा आज हमारा हम जो तस्करा कर रहे हैं उन स्टालवार्ड्स का, वहाँ जो है रेड फोर्ट के ऊपर से वहाँ जो है शिफा का तस्करा करना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भाई शिफा में जो है ऐसा था, देखो वो जाग देखो हॉस्पिटल कैसी है, वहाँ जाकर तो स्कूल कैसी है, उनकी तो फैमिली का तस्करा करना, निज़ाम का तस्करा करना. आज एवरीवन डिस्कसेस इन बैड टेस्ट, कहीं को क्या भी नहीं है ना, नई रेस अगर उड़ती बोलो क्या भी नहीं है. आप और हम लोगों को ना जो है जी कोई चीज़ में हमारे पास निज़ाम नहीं है. एंड वी वांट जो है थिंग्स टू कम इन शेप. हर चीज़ में मनमानी है, हर चीज़ में ईगोइज्म है, ना आने में जो है पाबंद, न जाने में पाबंद. लास्ट में एक ही जुमले के साथ लिखने इन द टॉक, आज़ादी बर्बादी को लाती है, पाबंदी आबादी को लाती है. तो भाई ये मुल्क आज़ाद ब्रिटिशर से हुआ है. मुल्क आज़ाद जो है जो चाहे करो, जब चाहे सो जाओ, जहाँ चाहे चलो, किसी आज़ाद नहीं हुआ है. वो मुल्क जो आज़ाद ब्रिटिशर से हुआ था उसको जो है पाबंदी में जकड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इसी तरह जो है हम आज़ादी का मतलब जो है उल्टा नाचो, उल्टा सरको, जो है 9 बजे आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे जाओ, कभी आओ कभी जाओ. तुम्हें डॉक्टर आओ, तुम इंजीनियर आओ, तुम्हें बड़े बड़े लोग आओ, तुम्हें सिक्योरिटी आओ, तुम ना बच्चे सो दूसरे किसी भी नहीं है, तुम्हें काम कर रही सो क्या मिले करो. जो ऐसी इसके वास्ते नहीं, ये कानून पर जकड़ने में आया है. जब मुल्क को कानून में क्या कर दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया, तो भाई इट टुक सम टाइम. डेफिनेटली 76 ईयर्स इज़ ए बिग टाइम. अग्री 1950 से भाई ऑलमोस्ट 26 से 75 ईयर्स पूरे हो गए.
बट 75 ईयर्स में टू पुल दिस मुल्क, माशाल्लाह हमारा मुल्क इकोनॉमी डाउन, हर चीज़ क्या भी नहीं था हमारे पास, माशाल्लाह ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक वी हैव बिल्ट अप. तो भाई लेट अस नॉट टेक क्रेडिट फॉर बिल्डिंग इट अप. बोलो ना हमें बिल्ड कर डाले, हमें कर डाले करको काला सीधा कर लियो ना को. हमें आज तक क्या भी नहीं करे. लेट अस स्टार्ट टुडे, लेट अस बी द कंट्रीब्यूटर्स. कल जो है हमारे बारे में पूरा मुल्क शान करें. यस भाई ये हमारा, ये मेरा. जैसा जो आज में मुल्क हमारा, हम भी मुल्क के हैं ना. हम अगर जो है इस मुल्क के लिए जो है अगर यू पुट इन टायरलेस एफर्ट्स विच सम जो है माशाल्लाह जो है जी क्या स्किल्स एंड भाई जो है 3 चीज़ें, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड कोलैबोरेशन, ये 3 चीज़ों के साथ एक टीम फॉर्म कर आगे बढ़ेंगे. आई थिंक नो वन कैन स्टॉप अस. मे अल्लाह तबारक व तआला एक्सेप्ट अस. और याद रखेंगे आज़ादी क्या लाती है? बर्बादी लाती है. टाइम में आज़ादी, काम में आज़ादी, उठने में आज़ादी, बैठने में आज़ादी, खाने में आज़ादी क्या करती है? बर्बादी लाती है. पाबंदी क्या करती है? पाबंदी क्या लाती है? आबादी लाती है. आबाद होना चाहते हो, बर्बाद होना चाहते हो? क्या होना चाहते हो? आबाद होना चाहते हो. क्या करना? पाबंद बनना. पाबंद बनेंगे इंशाल्लाह. आयाज भी, सिक्योरिटी भी, स्टाफ भी, मई भी, कंसल्ट सब पाबंदी इंशाल्लाह आज अहद लेंगे. वी आर ए डिफरेंट शिफा. एंड जो हम लोगों ने अहद किया था लास्ट रिपब्लिक डे में, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू जस्ट फिनिश ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्क. और सबसे ज़्यादा जो है क्योंकि हमारी पीठ हमको नज़र नहीं आती, इसलिए हम अपने आप को जकड़ रहे हैं हॉस्पिटल को NABH के क़वानीन में. तो NABH में हज़ारों कानून हैं, नियरली मोर देन 652 जो है 650 को 2 जो है क़वानीन. उसमें जकड़ क्यों रहे? इसलिए कि जो है हमको हमने मालूम नहीं था कहाँ कहाँ कैसे पाबंदी करना. तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 70% अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है पूरे कर लिए हैं. बाकी 30% भी जो पूरा करेंगे. और मुमकिन है इंशाल्लाह नेक्स्ट रिपब्लिक डे में अल्लाह तबारक व तआला जो है हमको जो है NABH के जो है वो जो है इंशाल्लाह सील के साथ यहाँ खड़ा करेगा इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैर व आफ़ियन मिला.